میں اسٹیج پر تشریف فرما شکر حضرات، پروگرام میں شامل معزز مہمانان اور خواتین و حضرات، آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ بچوں کے ادب میں نظم اور کہانی دو ایسی اصناف ہیں جن پر سب سے زیادہ خامہ فرسائی کی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد میرے مقالے کا عنوان ہے بچوں کے چند نمائندہ غزل و شعرا 21ویں صدی میں۔ بچوں کے ادب میں نظم اور کہانی دو ایسی اصناف ہیں جن پر سب سے زیادہ خامہ فرسائی کی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد مضمون نگاروں کی طرف ادیبوں کا زیادہ رجحان رہا ہے اور جس کے چند معروف ابتدائی مضمون نگاروں کی شکل میں خالد خان نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ چنانچہ جب ہمیں ادب اطفال کے موضوع پر بحث کرنی ہوتی ہے تو ہماری توجہ عموماً نظم اور کہانی پر ہی مرکوز رہتی ہے، جس کے سبب اردو کی دوسری مقبول عام اصناف غزل، ڈرامہ، رباعی وغیرہ موضوع بحث بننے سے قاصر رہی ہیں، جبکہ اردو کے ادب اطفال نے ان اصناف کی خدمات کم سے ہی لیکن دیر پا نقوش ضبط کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کا ثبوت اسکولی سطح کے نصاب میں کئی دہائیوں سے شامل میر، غالب، درد، مومن، ذوق، سودا، فانی، شاعر وغیرہ کی وہ لافانی سادہ فہم غزلیں ہیں جو بچوں کو بآسانی ازبر بھی ہوتی ہیں اور ان کے عقل و شعور اور تخیل کی کارفرمائی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ مذکورہ بالا میں گنائے گئے شعراء اور اردو شاعری کی آگرو کہلاتے ہیں اور وہ اردو کے ابتدائی زمانے میں شاعری کے افق پر چمکنے والے تابندہ و پائندہ ستارے کہے جا سکتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی اپنی جگہ انفرادیت کی حامل ہے کہ ابھی تک اردو شاعری میں ان کا کوئی نقش ثانی پیدا نہیں ہوا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اردو کے نصاب میں تبدیلی کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی یا جس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ البتہ ماضی یا روایت کی اعلیٰ اقدار کو فراموش کیے بغیر زمانے کے اصل تقاضوں کے مطابق چلنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا جو شاعری کی ایک اہم صنف غزل میں عشق و عاشقی کے موضوع کو اکثر بیشتر شعراء نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، حالانکہ وہ شاعری کا ابتدائی دور تصور کیا جاتا تھا اور جبکہ غزل کے لغوی معنی بھی عورتوں سے باتیں کرنا کے ہیں، سو اسی کے مترادف شاعری بھی ہو رہی تھی اور پسند بھی کی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ غزل میں اصلاحی، سیاسی، سماجی، مذہبی، اخلاقی، معاشی موضوعات کو بھی بڑھتا گیا، جس سے غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا اور آج اس کے ذریعے سے متنوع قسم کے مضامین اور مسائل اجاگر کیے جا رہے ہیں۔ غرض کی غزل انسانی زندگی سے پوری طرح جڑی ہوئی ہے۔ بچوں کے ادب میں جس طرح نظم اور کہانی کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح غزل کی معنویت اور افادے سے انکار کی گنجائش بھی ممکن نہیں۔ غزل ہی وہ صنف ہے جو تمام اصناف سے زیادہ رواج پا چکی ہے، نیز خاص و عام میں مروج بھی ہے۔ نظم کے برعکس غزل کے اشعار بچوں کو ذہن نشین کرانا بہت آسان ہے۔ یہ شاعر پر انحصار کرتا ہے کہ وہ غزل کس قدر سلیس، شستہ اور دلچسپ کہتا ہے، علاوہ ازیں اس کا موضوع بچوں کی نفسیات سے کس قدر مناسبت رکھتا ہے۔ بچوں کے ادب میں کہانی اور نظم کی اس رجحان نے یقیناً صنف غزل پر نقصان دہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ ادیبوں کا بچوں کے لیے غزلیں تخلیق نہ کرنا انہیں اردو کی ایک اہم اور باوقار صنف سے محروم رکھنے کے برابر ہے۔ اگر آج اسکولی سطح کے نصاب کی نظر ثانی کی جائے یا اس کی تبدیلی کے بارے میں سوچا جائے تو اس میں ادب اطفال کے اصلی غزل و شعراء کی شمول لے کر بہت سوچ بچار کی ضرورت محسوس ہوگی، جس کی وجہ بچوں کے لیے غزل تخلیقات کا سرمایہ بہت کم اور نایاب ہونا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانی ذہن ارتقا پذیر ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ بچے کا شعور، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کے کردار و افعال پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آج کے بچوں کی ذہنی نشوونما اور شعوری بیداری کے لیے ہم 200 سال پہلی دہرائی ہوئی چیزیں پیش کر کے ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ شعراء و ادبا کو اصلی ماحول، حالات اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری اور افادی تخلیقات بھی بچوں کو پیش کرنی چاہیے۔ عہد حاضر کے بچوں میں پرواز تخیل کے لیے غزلیہ تخلیقات بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ نظمیہ شاعری اور کہانیاں۔ موجودہ دور کے بچوں کی ذہنی انفرادیت، فکر، شعور اور قوت ادراکیہ میں حیران کن تجربے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی فکری وسعت اور ذہنی پختگی کو زیر غور رکھتے ہوئے غزل کے ساتھ ان کے رشتے کو خوشگوار کرنا بھی دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہم 21ویں صدی میں بچوں کی غزل کو شعراء کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمارے ہاتھ صرف مایوسی آتی ہے۔ اردو کے بہت سے شعراء حضرات نے
बच्चों के लिए गज़लें कही हैं, मगर इस सिनफ में वो बच्चों का ज़्यादा मजबूत और दूर तक साथ देते नजर नहीं आते, बल्कि कुछ गज़लों पर ही इक्तिफा करके किनारा कशी इख्तियार करते हैं। बाज़ शोरा तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी शायद शुदा गज़लों पर ही एतबार नहीं है, इसलिए इन्होंने अपनी गज़लों को तसानीफ में शामिल करने से बेअतनाही बरती। अलबत्ता आसरे हाजिर में बच्चों के चंद शायर ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए गज़लें लिखकर इसी लिखी न सिर्फ साथ रखी, बल्कि इनके तय फर्ज शनासी भी अदा की। ये गज़ल तो हजरात बच्चों के लिए गज़ल लिखने की रिवायत को आगे बढ़ाने में मुफीद और मुआविन रोल अदा कर रहे हैं। अरब अल्फाज की गज़ल को शुअरा में अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी, मुज़फ़्फ़र हनफी, नज़ीर फतेहपुरी, अबुल फैज़ आज़म सहरियाबी, ज़फ़र कमाली, फ़रूक रोहवी, कायसर सिद्दीकी, आसिफ साकिब, शमसी कुरैशी, ज़फ़र गोरखपुरी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को 21वीं सदी में अरब अल्फाज का इमाम कहा जाए तो बेजाना होगा, जिन्होंने बच्चों के लिए कमोबेश 70 करीब किताबें लिखी हैं, जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत मसलन गज़ल, नज़्म, कहानी, रुबाई, ख़त, दोहे, गीत, नात मनक़बत और मज़ामिन वगैरह का अहाता किया गया है। हाफिज कर्नाटकी ने बच्चों के लिए वाफ़द तादाद में गज़लें कही हैं। बच्चों पर इनकी गज़लें किताबों में मासूम गज़लें, बच्चों की गज़लें और नन्ही मुन्नी गज़लें खासतौर पर शामिल हैं। ये तीनों किताबें 21वीं सदी में ही शाया हुई हैं। हाफिज कर्नाटकी से पहले उर्दू का कोई शायर ऐसा नहीं गुजरा है जिसने बच्चों के लिए गज़लों का कोई मजमुआ यादगार छोड़ा हो। इस मैदान में हाफिज साहिब पहले शायर वाक़ा हुए हैं जिन्होंने तजुर्बा किया तो कामयाब भी हुए। मौसूफ शायर ने महज लिखने का तजुर्बा किया, बल्कि एक नया फार्मूला अपनाते हुए बच्चों से अपनी गज़लों की तिलत भी करवाई और इसके साथ तरन्नुम से भी पढ़वाई। जब इन्हें अपनी गज़लें बच्चों के लिए मानूस लगने लगी तो इन्होंने मजीद तजुर्बा करते हुए 2 और मजमूए शायर करवाए। इस तरह की गज़लें बच्चों को रास आने लगी हैं। इसके अलावा असातिज़ा सुख़न और चंद शुअराए किराम ने भी इनकी गज़लों को बेहद पसंद किया है। अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी अदब के इनामात तस्वुर किए जाते हैं। बच्चों के अदब में इनकी खिदमत कम काबिल कदर है, इसकी खुसूस ने इन्हें अदब में एक अहम मकाम अता किया है। यूं भी कहा जा सकता है कि हाफिज साहब बच्चों के लिए ही पैदा हुए हैं। इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू गज़लों का जो गिरा कदर सरमाया तहरीर किया वो काबिल तहसीन है। इनकी गज़लें जहाँ बच्चों की ज़हनी बेदारी करती हैं, वही बालिग ज़हनों के लिए भी अफसाइश व बालिगी का उन्सुर पैदा करती हैं। इस जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की याफ्ता दौर में बाज़ शोरा गज़ल के मानी औरतों से बातें करना ही मुराद देते हैं। इनका कहना कि जब गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना के हैं तो शायर बच्चों से कैसे बातें कर सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारी शायरी किस मोड़ पर खड़ी है। ऐसे शुअरा के लिए हाफिज कर्नाटकी का गज़ल कलाम नमूना हयात है और ज़िंदा जावेद मिसाल भी। चाहे जो चाशनी और लताफत और फतानत से भरपूर है, फसी और बलीग हैं और जो फन की कसौटी पर भी पूरी तरह खरी उतरती हैं। हाफिज साहब की किताब बच्चों की गज़लें से चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। ये अहलिन्नौ के शरीफ बच्चे हैं आप अपनी नज़ीर बच्चे, दूर जिनसे किताब होती है इनकी किस्मत खराब होती है। एक छोटी सी लग़्ज़िश भी उम्र भर का अज़ाब होती है। बनाई है औरत ने कुदरत की खातिर हया की हवेली, हिजाबों की दुनिया। मौजूं की तरह मिलकर झरनों की तरह रहिए, एक पेड़ की शाखों पे फूल की तरह रहिए। हर एक साये से अफजल माँ और बाप का साया है। हाफिज कर्नाटकी ने बच्चों की नफ्सियात और फिक्री तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए मुतनव्वी और बहुमज़मूनी अंदाज की सैकड़ों गज़लें कही हैं। ये सब गज़लें चाशनी, रवानी और मताना जैसी हर खूबी से ममलू है। इनकी छोटी बहर और बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में पेश की गई गज़लों में बेशुमार मौज़ूआत पिन्हा हुए हैं और गज़ल में इसी उन्सुर को बुनियादी खसूसियत हासिल होती है। गज़ल में अमूमन इशारों की लाइन में बात होती है, जिसके लिए अलामतों, इस्तिआरों और तरकीबों और तशबीहों से काम लिया जाता है, जिसकी अहले इल्म हज़रात अपने तौर पर तशरीह व तफ़हीम करते हैं। गालिब और इक़बाल के कलाम की शरहों से भी मेरी इस बात की तस्दीक होती है। लेकिन जब शायर बच्चों के लिए गज़ल तख़लीक़ कर रहा हो तब इनकी ज़हनी सतह पर आना होता है। बच्चों का ज़हन और दिल जिन चीज़ों की तरफ मानूस होता है, गज़ल में इन चीज़ों को पेश करना बहुत लाज़मी है। तो ना ही बच्चों के शऊर को कैसे बालिग़ किया जाए।
इनकी जहनी उपज को कैसे उभारा जाए, अच्छाई और बुराई में कैसे तमीज की जाए, सही और गलत की निशानदेही कैसे की जाए, दुनिया की हकीकत से कैसे रोशनास किया जाए, रिश्तों का एहसास कैसे कराया जाए, भाईचारगी और कौमी यकजहती का दर्ज कैसे दिया जाए, दिन और मजहब की हकीकत से कैसे आगाह किया जाए, इंसान की असली दौलत क्या है, इल्म अमल और अच्छे अखलाक और आदाब के क्या फायदे हैं, सच्चाई की अलम कैसे बुलंद की जा सकती है, इंसानियत की हिफाजत और उसकी बका कैसे मुमकिन है, बुलंद अज़ाइम के क्या फवाइद हैं, हौसलों को कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है, मुश्किल हालात का सामना कैसे करें, मोहब्बत उखुवत और भाईचारगी की रोशनी कैसे फैलाएं, जिंदगी के हादसात का सामना कैसे करें, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे की जाए, कौम की तरक्की और वतन की भलाई के लिए क्या कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए, दोस्ती कैसे निभाई जाए, अपनी झूठे दोस्तों की पहचान क्या है, रिवायती अकदार से फरामोशी किस कदर नुकसानदेह है, नज़्म ज़ब्त को कैसे पैदा किया जाए, नफरत दुश्मनी प्यार और मोहब्बत और शफकत में फर्क कैसे किया जाए, और नई नई इजादात की मालूमात बच्चों को बहम कैसे पहुंचा जाए वगैरह को भी शुरा ने जिस तरह नज़्म किया है, नज़्म में पेश करते आ रहे हैं, इस तरह हाफिज साहब ने भी इन मौज़ूआत को बड़ी शगुफ्तगी के साथ पेश करके गज़ल की इंफरादियत और अहमियत वाज़ह कर दी है। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी उर्दू अदब में आसिफ अल्फाज का एक मोतबर नाम है, जिन्होंने बच्चों के लिए 6 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनके लिखने का सिलसिला 21वीं सदी में भी जारी और सारी है। बच्चों के अदब में इनका रुझान ज़्यादातर नज़्म निगारी की तरफ रहा है, ताहम इनकी तख्लीक़ात में कुछ गज़लें भी शामिल हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ अवकात में बच्चों के लिए लिखी हैं। इनकी गज़लों को पढ़कर एक कारी को महसूस ही नहीं हो सकता कि इनकी नज़्म मानी मफ़ाहीम बच्चों की ज़हनी साख्त और तरबियत और किरदार साजी में बरतर हैं, यानी कि गज़लें, क्योंकि बच्चों पर लिखते वक्त मुसन्निफ़ के पसपूश महज एक ही मकसद होता है और वह इनकी अखलाक और किरदार साजी, चाहे वो सिंफ नज़्म हो या सिंफ गज़ल वगैरह। मुज़फ्फर हनफी भी बच्चों पर लिखते वक्त इस पहलू को खास तौर पर मलहूज़ रखते नजर आते हैं। इन्होंने नज़में भी बकरी लिखी और गज़लें भी शुस्ता और रवा और फहम। कुछ शेर आप हज़रात की ज़ौक़ नज़र करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। बच्चे लाए उन्नू की तितली और निराले फूल, बच्चे लाए उन्नू की तितली और निराले फूल, खुशबू देने वाली तितली और निराले फूल, जिस दिन गुलशन में नफरत की आंधी चलती है, शाखों पे उगने लगते हैं काले काले फूल। मियाँ की जेब में कल तो भरे हुए थे चलने, मियाँ की जेब में कल तो भरे हुए थे चलने, अब इनकी जेब से निकले मटर तो क्या होगा। सारी झीलें श्रीनगर की, बाग बगीचे दिल्ली के, बाबा मेरे गाँव में क्यों है इतना कीचड़ इतनी धूल, जो हमको अखरोट में देंगे हम इनको वोट में देंगे। मुजफ्फर हनफी ने जहाँ अपनी गज़लों में बच्चों के दिलों को लुभाने का काम किया है, वहीं इनके लिए दिलचस्प सब भी छोड़ गए हैं। मज़कूरा वाला अशार से इसका अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल न होगा कि किस तरह इन्होंने फूल को मौजू बनाकर प्यार और मोहब्बत का गुलशन आबाद किया है। मुजफ्फर हनफी ने अपनी गज़ल शायरी में बच्चों के मासूम जज्बात और उनकी एहसास का पूरा ख्याल रखा है। इन्होंने बच्चों की पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए तितलियों, फूलों, बगीचों, झीलों, जुगनू, बड़ों की बच्चों से कुर्बत और माहौल वगैरह की खूबसूरत अक्कासी की है, जिससे वो एक तो बच्चे का दिल भी बहला रहे हैं और दूसरी तरफ इसमें शूरी बेदारी का वसीला भी पैदा कर रहे हैं। मौसूफ शायर रमज़ो ईमा को भी बड़ी मुहारत के साथ इस्तेमाल करते हैं और इस तरह बहरते हैं कि बच्चा भी बार महसूस नहीं कर सकता। इस तरह शायर अलामती रंग में बच्चों को नुकसानदेह अनासिर से भी आगाह कराता है। मुजफ्फर हनफी बच्चों के अफ़ाल और हरकत को भी शायरी का मौजू बनाते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में बचपन का मरहला आता है, इसलिए शायर को बचपन के तजुर्बे से आगाही बखूबी हासिल होती है। मुजफ्फर हनफी की गज़लें बच्चों को हिस्स पहुँचाने के साथ साथ अखलाकी दर्ज भी देती हैं। इनकी गज़लें बच्चों को तफ़रीह तबाह का सामान भरपूर फराहम करती हैं। अभी अल्फाज के मौजू पर इन दिनों कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा रही है। उर्दू अदब की तारीख की किताबों में कहीं अदबी अल्फाज का मौजू ही नहीं है। अलबत्ता कुछ रसायल जैसे उमंग, बच्चों की दुनिया, क़याम तालीम, नया खिलौना वगैरह अभी तक इसकी साख बचाए हुए हैं, वगरना नाज़रीन कब की इस मौजू को फरामोश कर बैठे हैं। यही वजह है शायद हज़रात अदबी अतफाली मौजू की तरफ तवज्जो मबज़ूल नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी पजीराई के लिए कोई सामने नहीं आता है। बच्चों में यूं तो नज़्म निगार शायर बहुत हैं, लेकिन शायर की तादाद नहायत कलील है। फिर भी बाद शुरा ने कमोबेश की गज़लें तख्लीक करके बच्चों की अदब में सिंध गज़ल की आबरू रखी है। जिन शुरा ने 21वीं सदी में बच्चों के लिए गज़लें लिखी हैं, उनमें ज़फ़र गोरखपुरी, शबनम कमाली, मोहम्मद शफीक अज़मी, मतीन अजदपुरी, आदिल हयात, सालिक जमील बराड़, शम्स कुरैशी, ताहिर सिद्दीकी, आसिफ साहब वगैरह शामिल हैं।
بعض لوگوں نے غیر دانستہ طور پر ایسی غزلیں لکھی ہیں جو بچوں کے ذمے میں آتی ہیں. ایسی غزلیں اگر تلاش کی جائے تو بچوں کے عدم غزل کی تحقیقات کا اضافہ ہوگا اور دوسرے شعراء کو بھی لکھنے کا محرک مل جائے گا جس سے یقیناً غزل ادب اطفال میں رواج پا سکتی ہے.